پھول نگر سابق نائب ناظم پھول نگر ملک سعید کے بڑے بھائی سابق ڈپٹی الیکشن کمشنر پنجاب ملک اعظم کے ختم چہلم میں شرکت۔ مولانا زہیب جلالی نے کہا کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ درست ہے تو بندے کا قرآن پڑھنا اور حدیث شریف پڑھنا بھی قبول ہے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایمان سال قبر میں کام آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ آ کے بندے کو بٹھا دیتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہو تو اس کے سر کی طرف نماز آ جاتی ہے، دائیں طرف روزہ آ جاتا ہے، بائیں طرف زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور پھر آگے صدقہ، صلہ رحمی، نیکی کی دعوت، اور یہ اعمال قدموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ علامہ مولانا حافظ مقصود نقشبندی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے امتی جنت میں جائیں گے۔ اس موقع پر سٹی پریس کلب پھول نگر کے ملک عبدالرزاق، ڈاکٹر لطیف، عوامی پریس کلب کے بانی ملک اکرام نے بھی شرکت کی۔ اب یزید الفقیر کہتے ہیں اس جلسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا یہ کیا تقریر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے کہا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی آپ بڑی غلط تقریر کر رہے ہیں، یہ کیا خطاب کر رہے ہیں آپ؟ اور جب مقابلے میں پڑھا کیا؟ دو قرآن کی پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ کے زیر اہتمام گجرات میں اہل سنت کے 2 رہنماؤں کو قتل کرنے کے خلاف مذمتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق مذمتی اجلاس ضلعی صدر پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ جہانگیر کی ہدایت پر منعقد کیا گیا، جبکہ مذمتی اجلاس میں علماء بورڈ کے اراکین اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ مذمتی اجلاس تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کیا گیا۔ اجلاس میں رکن علماء بورڈ قاری مبارک علی قادری اور علامہ ذیشان نقشبندی نے کہا کہ ہم گجرات میں اہل سنت کے 2 رہنماؤں کو قتل کرنے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور گجرات میں مذہبی جماعتوں کے قتل عام کرنے والے ملزمان دندناتے پھر رہے ہیں، جبکہ گجرات پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قائدین کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری تنظیم ایک پرامن تنظیم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بد امنی پھیلے۔ رکن علماء بورڈ قاری نصیر مدنی قاری ساجد قادری نے کہا کہ گجرات میں 2 مذہبی جماعتوں کا قتل پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر پاکستان سنی تحریک سیالکوٹ کے تحصیل رہنما ملک عامر اقبال، علامہ اشفاق قادری، حمزہ قادری، جنید قادری، بابا قدیر، شہباز قادری، عمر قادری سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی۔ حافظ آباد ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں۔ حافظ آباد میں ہیڈ ساگر کے مقام پر مون سون بارشوں اور دریائے چناب میں آنے والے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ فرضی مشقوں میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ، محکمہ لائف سٹاک، محکمہ پولیس، وابڈا، ایریگیشن اور سول ڈیفنس نے حصہ لیا۔ ADC حافظ آباد نے مشقوں کا معائنہ کیا۔
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर मोहम्मद नईम अख्तर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद मानसून बारिशों और दरियाई चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। जिलाई इंतजामिया ने तमाम महकमों की तैयारियों को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका अड्डा पुल फजलवा में लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। शहरी गर्मी की वजह से बहुत परेशान। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बारे में कुछ न कुछ संजीदगी दिखाए। मजीद जानते हैं वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मलिक साकिब मौजूद हैं। जी मलिक साकिब, आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया का इलाका पुल फजलवा में, जहाँ पे बिजली जो है वो काफ़ी दिनों से लोड शेडिंग शुरू कर दी है। मेरे साथ कुछ शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कहना है इनका। जी भाई, ये इस वक्त बहुत गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, कई कई घंटे बिजली गायब रहती है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करें। गर्मी का मौसम है, ओवर बिलेंगे उसका भी बिल भी कम करें। कारोबार लोगों के बहुत ख़त्म हो चुके हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, वो कई कई घंटे बेकार बैठे रहते हैं, तो उनके कारोबार में बहुत खलल हो रहा है बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से। इसके बारे में कुछ इक़दाम करें हुकूमत। जी जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के बारे में कुछ संजीदगी ले। मेरे साथ एक और भी शहरी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। तो जी बिजली की लोड शेडिंग इन्हें शदीद गर्मियाँ शुरू थी गई, ये हर शहरी का बुरा हाल है। खास तौर स्कूलों के बच्चे जो है ना बेहोश ही है, हस्पतालों के मरीजों का जो है ना बुरा हाल है। ताजर बाकी भी जितनी लोग हैं, खास तौर जो है ना जिन्हें रोज़गारी जो है ना बिजली के नाल मुंसलिक है, वो हाथ जो हाथ काट के लेते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। हुकूमत को चाहिए है कि कम अज़ कम जरले ये हुकूमत आई है, इन्हें को पहली जी हुकूमत है मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, उन वाले बिजली एक सेकेंड ही कहने लगी, एक मिनट ही कहने लगी। क्या वजह है कि लोग ही वो हैं बिल देने वाले वो हैं, बल्कि हूँ तो बिल कई गुना जो है ना हुकूमत के बाद कई गुना इजाफा थी, यानी सोच में भी ज़्यादा बिजली के बिल आने पर हुकूमत को चाहिए है कि जो है ना लोड शेडिंग होते कम अज़ कम जो है हम बदलाना गौर करें। गरीब आवाम में तो खास तौर छोटे छोटे बच्चे नहीं। जी जैसा कि आपने सुना है, शहरी का कहना है कि जो साबका हुकूमत थी उनके दौर में बिजली नहीं जाया करती थी, अब रेट भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन लोड शेडिंग ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। जी 40 दिन बीत गए मगर मेहर पीटीआई रहनुमा जुबैर समू का भाई शुएब समू आज़ाद ना हो सका। 40 दिन कबल शुएब समू को अगवा किया गया था। मुर्सा परेशान कुन जिंदगी बसर करने लगे। भाई की बाजियाबी के लिए जुबैर समू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई रहनुमा मेहर जुबैर समू ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 40 दिन कबल मेरे भाई शुएब समू को अगवा किया गया था, जिसकी वजह से हमारा सारा खानदान गमों में मुब्तला हो गया है। 40 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस शुएब समू को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुकी है। हमारे खानदान से 10 लाख रुपए बराए तावान तलब किए जा रहे हैं। शुएब समू के अगवा की कोर्ट में पिटीशन दायर की है। कोर्ट के हुक्म के बावजूद पुलिस बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है और मुकदमे में नामजद अफराद मुकदमे से दस्तबरदार होने पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। दीगर सूरत में मेरे भाई को मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, IG सिंध से अपील करते हैं कि मेरे भाई शुएब को बाजियाब कराया जाए। जस्टिस ऑफ सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं आला इदारनि खे वसवारनि खे मां अपील थो कयां त ख़ुदा जे वास्ते मुंहिंजे गुम कयल भाउ खे बाज़ियाब कराए ऐं उन ते जेके कूड़ियूं FIRूं ऐं असां ते जेके कूड़ियूं FIRूं आहिनि उहे ख़तमु कई वञे। असांखे ड्रिज आहे त हितां जा जेके बाअसर जिन अगवा कयो आहे उहे असांजे भाउ खे खून न कराए छॾनि ऐं उन जी जान खे ख़तरो आहे। हाणे उहे बाअसर तरह तरह जा मैसेज करे ऐं बाअसर माण्हुनि खां कुझु मुख़्तसिर माण्हुनि खां मुंडे न्यापा मोकिलाइनि था त असांखे 10 लाख रुपया बि ॾे ऐं असां ते जेका तो पटिशन दाख़िल कई कोरज सगोरी में
उहा जेका असां ते FIR आहे उहा बि ख़तमु कर, न त तुंहिंजे भाउ जो तोखे खून मिलंदो। हाणे मूंखे ड्रिज आहे, असांखे तमामु घणी परेशानी आहे त मुंहिंजे भाउ खे कुझु करे न छॾनि, मारे न छॾनि। ख़ुदा जे वास्ते मुंहिंजे भाउ खे बाज़ियाब कराए असांजी बेचैनी ऐं जेको घर जी कैफ़ियत आहे उहा ख़तमु कई वञे। शेखुपुरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत कॉर्नेट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज TIG DIG महबूब असलम की हिदायत पर मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में टोटल पार्कों के इश्तराक से शजरकारी की गई। डेप्यूटी कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तैमूर खान और मोटरवे पुलिस के दीगर अफसरान ने अपने हाथों से पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। अपने पैगाम में DIG महबूब असलम ने कहा, शजरकारी मुहिम के जरिए मोटरवे पुलिस लोगों को तरगीब देना चाहती है कि वो पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना किरदार अदा करें और इस अमर को समझें कि अगली नस्लों को सेहतमंद और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए इन पौधों की परवरिश इंतहाई ज़रूरी है। डेप्यूटी कमांडेंट मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तैमूर खान ने कहा कि दरख्त लगाकर माहौल को बचाना न सिर्फ हमारी कौमी जिम्मेदारी है बल्कि इंसानियत की बेहतरीन खिदमत भी है। आखिर में मोटरवे पुलिस के अफसरान ने इस अज़म का इआदा किया कि मोटरवे पुलिस सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान के ख्वाब की तकमील के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर अपना किरदार अदा करती रहेगी। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िलाई रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ़ ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात मियां जावेद लतीफ़ MNA की रिहाई को हक सच की फतह करार दे दिया। उनका मज़ीद कहना था कि मियां जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के सिपाही हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली और अदलिया की आज़ादी और कौमी इत्तेहाद और यगानत के फ़रोग़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं। उनकी पार्टी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुल्क दाखिली और खारजी महाज पर बहरानों और शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुर्बत और इफलास तंगदस्ती की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान हर रोज़ नित नए वादे और दावे करके अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां ज़ीशान परवेज़ ने कहा कि PTI की हुकूमत ने मुल्क को पीछे धकेल दिया है। विफाक और पंजाब हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है। ट्रेन पटरी की मुरम्मत के पैसे करप्शन की नज़र हुए। IMF की डिक्टेशन पर बताया गया, बजट कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मियां जावेद लतीफ़ MNA के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ अशाइये का एहतमाम किया जाएगा जिसमें ज़िला भर के कारकुनान शिरकत करेंगे। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि PTI की हुकूमत ने मुल्क की तरक्की और आवाम की तकदीर संवारने का जो बेड़ा उठाया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। कराची मईशत का हब है और इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत कराची की तकदीर भी बदलेगी। तहरीक इंसाफ से 3 साला दौर का तो हिसाब मांगा जाता है जिससे हम इनकारी नहीं, लेकिन कई दुहाइयाँ हुकूमतें करने वाले अपने एहतसाब के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपनी आंखों में इक़्तिदार के जो ख्वाब सजाए बैठी है वो पहले की तरह चकनाचूर होंगे और उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमानों को सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी कई बरसों से बरसरे इक़्तिदार है और तहरीक इंसाफ की पंजाब में पहली हुकूमत और तीसरा साल है, लेकिन उसके बावजूद सिंध का कारकर्दगी में पंजाब से कोई मुआवजा नहीं। सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो लूट मार, जबकि पंजाब हुकूमत गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। इंशाअल्लाह आइंदा इंतआम इंतखाबात में सिंध में भी PTI हुकूमत बनाएगी और मसाइल ज़दा सूबे को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि नए विफाकी बजट में अवाम को रिलीफ न मिला तो गुर्बत से तंग आए हुए लोग हुक्मरानों का कड़ा मुहासबा करेंगे। सेठ गुलाम रसूल ने कहा कि जल्द हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जद्दोजहद शुरू की जाएगी। बजट कहीं और तैयार हो रहा है, हुकूमत सिर्फ ऐलान करेगी। कठपुतली हुकूमत और रिमोट कंट्रोल वजीर आज़म अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देख रहे हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में गुर्बत, बेरोजगारी और जराइम में बदतरीन इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने वाले भी मायूस हो चुके हैं।
आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत का हर दिन पाकिस्तान के लिए भारी साबित हो रहा है। हर सतह पर इंतकामी सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करती रहेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई के अलावा कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। हुक्मरान हर सतह पर बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। तब्दीली के नाम पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है और साथ ही सब्र की तलकीन भी की जा रही है, जो अवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है।